Welcome to DME 102 Engineering Drawing 1, and we will continue with the same topic, that is projection of solids, and further we will continue with the question bank and the remaining questions will be done today. So in the previous lecture, we did the questions till question number 51. That was a pentagonal prism. Now today we will do question number 52, 53, 54, 55 and 43. Okay, so we'll start with the question number 52. Question number 52 is a square base prism of 25 mm side and 50 mm axis is resting in HP on one of its sides, which makes an angle 45 degrees to VP, and the axis of the solid makes an angle 30 degrees to HP. एक स्क्वायर प्रिज्म 25 mm साइड का 50 mm एक्सिस का HP पे रेस्ट कर रहा है अपने किसी एक साइड के ऊपर, बेस के साइड के ऊपर, और वो जो साइड है जो HP पे है वो 45 डिग्री बनाती है VP के साथ, और पूरा का पूरा एक्सिस प्रिज्म का 30 डिग्री बनाता है HP के साथ. जो साइड HP में है वो 45 डिग्री बनाती है VP के साथ, और जो सॉलिड का एक्सिस है वो 30 डिग्री बनाता है HP के साथ. Okay. Suppose this is the square prism. This is not the square prism. Actually, this is the cube, because length, height, and width, all are equal. But we can assume that if we will increase the height of this, then it will be a prism. So the prism will be like this. Prism will be like this. This is the prism, square-based prism. This is the square. This is the height, and this is prism. Okay. Now it says that this prism is resting on one of its base side on the HP. तो हमको क्या करना होगा, इसका जो शेप है, स्क्वायर शेप जो है, ये आपका प्लान में नजर आएगा. स्क्वायर शेप प्लान में नजर आएगा, और एलिवेशन में जो नजर आएगा वो आपको ये रेक्टेंगल नजर आएगा. तो इसका जो फर्स्ट स्टेप हो गया, इट इज रेस्टिंग ऑन HP in such a way that one of the base edge, this is the base edge, this one is the base edge. तो यहां पर ये HP पे रखा है, and then it is making angle with HP. तो ये यहीं पर रखा रहा, और HP के संग इसने एक्सिस ने 30 डिग्रीज का एंगल बनाया. द एक्सिस इज मेकिंग 30 डिग्रीज with the HP. The axis is making 30 degrees with the HP. HP के साथ 30 degrees का एंगल बनाता है. और उसके बाद the side which is in HP, ये 45 डिग्री बनाता है VP के साथ. This makes angle with VP 45 degrees. So first step is this, plan and elevation. Second step, inclined 30 degrees, plan and elevation. इस कंडीशन में आपका जो एलिवेशन है वो आपका ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, which is tilted by 30 degrees to HP. And इस कंडीशन में आपका जो प्लान नजर आएगा, means this, आपको जो पूरा एक स्क्वायर नजर आ रहा था, अब वो स्क्वायर एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द प्लान, बिकॉज दिस इज 30 डिग्रीज, और ये ऐसे करके टिल्ट हो गए 30 डिग्री 90 डिग्रीज, बिकॉज द टॉप व्यू इज फ्रॉम द टॉप. ये देख रहे हैं, इसका मतलब मैं इसको अगर ये 90 डिग्रीज कर दूं तो ये नजर आएगा. देन इट विल बी रोटेटेड बाय 45 डिग्रीज. तो ये आपका फाइनल पोजीशन हो जाएगा. फाइनल पोजीशन में प्लान एंड एलिवेशन ये नजर आने लगेगा. ओके, सो लेट्स मेक इट. जो स्टार्ट करेंगे हम इसको, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को, उसका जो टॉप व्यू है वो एक स्क्वायर नजर आएगा. तो स्क्वायर आपको
क्वेश्चन नंबर 52, स्क्वायर बेस प्रिज्म। इस स्क्वायर में आपको जो एक साइड है वो आपको परपेंडिकुलर एक्स वाई लाइन के लेनी होगी। सपोज दिस इज ए बी सी डी, 1 2 3 and 4 ABCD is for the bottom base and 1 2 3 4 is the for the top base edges, base edge के चार edge हो गए bottom base and top base के। Now the axis bisect two sides, you will get the center। वहां से आपने एक्सिस लाइन ड्रॉ किया। The height is given 50, जितना इसका हाइट है वो आपने ड्रॉ कर लिया। Now the bottom base is A dash, B dash, C dash, D dash. Top base is 3 dash, 4 dash, 1 dash, 2 dash. O dash, O1. Here O dash, O1 dash. The axis. Now this is resting on one of its edge, base edge or base side on the HP. So this CD will be remaining on XY and the axis is inclined at 30 degrees to HP. जब हमारा axis ये 30 degrees बनाएगा तो जो base है वो यहाँ पर 60 degrees बनाएगा। इस चीज को आपने समझना है। ये जो base है सबसे पहले हमको ये बनाना होगा यहाँ पर। जब ये हम यहाँ पर 60 degrees लेंगे तब हमारा जो axis है ये हमारा 30 degrees आएगा। So what we will do, this point is C dash, D dash। ये लाइन यहां से जब ड्रॉ करेंगे इसको हम यहां 60 degrees पे बनाएंगे because this axis is making 30 degrees with the HP. So this base will be at 60 degrees. So this point will be A dash, B dash। इस पूरे रेक्टेंगल को हमने टिल्ट कर दिया। This will be A dash, B dash, C dash, D dash. This point is 3 dash, 4 dash, 1 dash, 2 dash. Okay. Now, for the top view, the observer is observing from this point. यहां से देखेगा तो उसको 1 2 3 4 ये जो पॉइंट्स हैं पूरे नजर आएंगे एंड सी डी ए बी में कुछ नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा। क्या नहीं नजर आएगा वो है पॉइंट सी एंड डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल locate 1 2 3 4, one from the elevation and one from the plan. This is your point 1. Then point 2, you can remove all the extra lines. Point 3 and point 4. Now for the bottom base, point C and point D. You cannot see this. So this will be a dotted line. And this is point B. This is point A. You can see this. Here you can see 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. तो इसमें क्या फर्क आ गया? अगर हम
इनिशियल फिगर देखें, ओरिजिनल फिगर देखें, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, वो आपका जो जब टिल्ट हुआ तो यहां पर एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया. तो इफ यू कंप्लीट द रेक्टेंगल देन दिस विल बी द शेप. अभी जो हमने उसको देखा था, दिस इज द शेप. Now, if I see this, then this is the rectangle. This rectangle is this. And these are the edges. ये नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा है? जो आपका ये एज है जिस पे रखा हुआ है, दिस इज द एज. अगर मैं इसको टॉप से देखता हूं, मींस दिस आई कैन नॉट सी दिस, दिस लाइन आई कैन नॉट सी, दिस लाइन आई कैन नॉट सी. So this is the second step here. Then the third step is the edge which is on HP is making 45 degrees. मतलब आपका जो CD है, ये line means this line is making 45 degrees with the VP. अभी ये perpendicular, right now this is perpendicular to VP. Now it will make 45 degrees with the VP. ये आपका perpendicular है. अब इसको अगर मैं एंगल करता हूं तो यहां पर ये 45 डिग्री VP के साथ बनाने लगेगा. ओके, तो टॉप व्यू में क्या फर्क आ जाएगा? दिस लाइन CD line will be made at 45 degrees. आपने इसको 45 डिग्रीज पे बनाया, मींस एक लाइन आपने ले ली 45 डिग्रीज के ऊपर, एंड इस लाइन के ऊपर आपने C and D, these are the points, ये ले लिया. This distance here, this is C and this is D. And now you have to reconstruct the whole figure at 45 degrees, rotated by 45 degrees. अब इसमें जो ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, so we can draw a perpendicular line here parallel to, both the lines are parallel to each other. तो इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं. यहां से C से जो डिस्टेंस है इतना B, you can take it with your divider and B to A. So this point is A. From C to 3, this is the distance. With the divider, you can take the distance, remove the extra lines, and this point will be 4. So this is 3 and this is 4. From 3 to point 2, this is the distance. With the divider only, you can mark point 2 also. So now your figure means the plan of figure 2. If I say this is figure 2, so this is the plan of figure 2 is rotated, tilted by 45 degrees. So this CD line is a dotted line. Okay. Now the position of the observer is here. Position of the observer is for the elevation is here. You can see the elevation from this point. So let's make the elevation here. Projections from the top view, projection from the previous elevation, you will get the final elevation here. तो यहां से अगर हम देखें, सबसे पहले हमको जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4. क्या नहीं नजर आ रहा है? A and B सबसे पीछे हो गया, at the back. So first of all, what we can see is 1 2 3 4. Let's project from each point 1 2 3 and 4. Point 1,
is here. So it will be 1 dash, 0.2 from the plan, and from the elevation, 2 dash, 0.3 and 0.4 is here. Please remove all the extra lines. 1, 2, 3, and 4. C dash D dash A dash and B dash. तो जो नहीं नजर आ रहा है वो है A dash B dash, इसको हम डॉटेड करते हैं. जो नजर आ रहा है 1, 2, 3, 4, we are confirmed that we can see 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. Then let's go by side edges. So I can see 2B and 3C. So 2B is here. 3C, this is point 3, this is point C. Then D4, I can see CD, and now by seeing the picture, I can say that BC I can see. Now what we cannot see is BA, AD, and D4, A1, A1. So if you see the position here, it is inclined at 30 degrees to HP. अब इसके बाद जब ये टिल्ट हुआ यहां पर ऐसे, जो एज है ये एज यहां पर थी, जब ये 45 डिग्रीज टिल्ट हुई तो ये पोजीशन आ गई. दिस इज द पोजीशन, दिस इज द पोजीशन. दिस इज द पोजीशन, दिस वाज द पोजीशन अर्लियर. यहां पर ये है. अब इसके बाद ये टिल्ट हो गया. दिस इज द पोजीशन. अब आपको जो ये एज है ये नजर आ रहा है, इससे ये दोनों एज नजर आ रहे हैं. एंड जो लास्ट है आपका पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, इससे जितने लिंकेजेस हैं ए बी, ए डी एंड 1A, ये नहीं नजर आ रहा है. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सॉलिड. दिस इज द पोजीशन ऑफ द सॉलिड. ओके, यहां से अगर हम टिल्ट करेंगे 45 डिग्रीज तो हमको ये नजर आएगा. So what we can see is here. This is the position. यहां से कोई एंगल नहीं था, एज ने नहीं बनाया था, टिल्टेड था एचपी से. अब जब एंगल बन गया तो ये आ गया. So you can very well make it that this is the top edge, this is the bottom base, top base, bottom base, side edge. These are the side lines. So final plan and elevation will be darken. तो आप यहां पर इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं. Final plan and final elevation. About the axis, from the second figure, you can
project the points. So you can draw the axis also. These are the points जो यहां पर बनाया आपने. अब इसको जब आपने प्रोजेक्ट किया तो यहां पर ये पॉइंट आ जाता है बॉटम बेस का, एंड ये पॉइंट आ जाता है आपका टॉप बेस का. ज्वाइनिंग दिस लाइन is the axis of the square base prism. Question number 53. So this is your question number 52. You can give the dimensions. यहाँ पे 25 का square. This is 50. And this angle is 30 degrees. This angle is 45 degrees. Okay. Now question number 53. Question number 53 is a cylinder of 25 mm base dia, 50 mm axis is resting in HP on a point of its base circle. The axis makes an angle of 30 degrees to HP and top view of the axis makes an angle 45 degrees to VP. Draw the projections. Here it says that the top view of the axis is making angle with the VP. इसको दोबारा से समझते हैं. एक सिलेंडर है, वो अपने बेस सर्कल के ऊपर रखा हुआ है, एचपी के ऊपर, बेस सर्कल के ऊपर रखा है एचपी के ऊपर, और वो किसी भी एक इसके पेरिफेरी के किसी पॉइंट के ऊपर जब रखा हुआ है तो वो एचपी से एंगल बनाता है. इट इज मेकिंग 30 degrees to HP. The axis of the solid is making 30 degrees to HP. And then इस कंडीशन में जो टॉप व्यू आ जाएगा, जो टॉप व्यू बनेगा वो आपका ये बनेगा, ये दिस इज द टॉप व्यू. मींस यहां पर आपको इलिप्स नजर आने लग गया. दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू. अब यहां पर इसको जब 90 डिग्रीज पे टिल्ट कर देंगे तो ये टॉप व्यू नजर आएगा आपको. तो एक इलिप्स यहां आ गया और यहां पर दूसरा इलिप्स आ गया जो कि ये सर्कल था, बट आपको इतना नजर आ रहा है. यू कैन सी ओनली दिस मच. द बैक साइड वी कैन नॉट सी, बट इट इज हियर, इट इज हियर. वी कैन सी ओनली दिस मच. तो यहां फ्रंट व्यू में तो आपको ये इलिप्स नजर आता है, यहां पर भी इलिप्स नजर आ रहा है, बट हाफ पोर्शन अप टू द diameter we can see the curve, but after that it is behind the ellipse, this curve, behind this curve. Okay, so ये हो गया second step. The solid is inclined at, axis is inclined at 30 degrees to HP. Then the axis is making, the top view of the axis is making 45 degrees with the VP. This is the third step. This is the third step. So what is the first step? This is the first step. In this, what is the plan and elevation? The plan will be your circle. Elevation is a rectangle. Second step, it is tilted by 30 degrees, means that rectangle will be rotated by 30 degrees. इस कंडीशन में इसका टॉप व्यू अभी हमने जिक्र किया था. दिस इज द टॉप व्यू. देन थर्ड स्टेप, नाउ द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू वीपी. अभी वीपी के पैरेलल है ये. राइट नाउ दिस इज पैरेलल. नाउ इट इज मेकिंग एंगल विद द वीपी. हाउ इट इज पैरेलल? अगर मैं इसको देखूं, ये वीपी है. सपोज दिस लाइन इज
is parallel to the VP. अब अगर ये solid 45 degrees बना रहा है, now this is tilted by 45 degrees. So this will be the final elevation, और इस condition में आपका final plan बनाना है. Okay, so let's start with the first step. Circle of given dia. We can divide the circle in equal 8 parts. One, two, three, 4, 5, 6, 7, and 8. A, B, C, D, E, F, G, and H. Projections for the elevation. Height के लिए हमने center से लेकर axis draw किया. The axis is 50. A line parallel to the base circle. This is the base circle. If I say that 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 7 dash, 8 dash is the base circle, bottom base circle, and top base circle will be A dash, B dash, C dash, D dash, E dash, F dash, G dash, and H dash. Now this rectangle is making angle with HP. That is, कितना दिया हुआ है? It is 30 degrees to HP. The axis is making 30 degrees to HP. दोबारा से समझिए, जो axis है ये बना रहा है 30 degrees. का मतलब base कितना बनाएगा? 60 degrees. So you will make this base at 60 degrees. 60 degrees के ऊपर जब आप base को tilt करेंगे तो आपका जो axis है वो अपने आप ही 30 degrees पे आ जाएगा. So a line at 60 degrees, उसके ऊपर ये point रख के आपने mark कर लिया. This point is 5 dash. This point is 5 dash, जो कि यहां रखा हुआ है. फिर इसके ऊपर आपने rectangle, जो length इसका दिया हुआ है वो लेकर ड्रॉ किया, एंड जितने भी आपके पॉइंट्स हैं डिवाइडर से मार्क करें एंड कंप्लीट द rectangle. This is axis. You can give the name 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 7 dash, 8 dash, A dash, B dash, C dash, D dash, E, F, G dash, and H dash. अब हर पॉइंट से आपने projections for the plan draw करें. These are the projectors. So now, from the previous plan, this is the top base circle. So A and E, the point is A and this point is E. You can remove all the extra lines. Then B and D, point D and point B, point C.
point H and F, point F and point H. This is point G. Point G. So A, B, C, D, E, F, G, H. We can see this is a full ellipse. तो यहां पर आप फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो आपको यहां इलिप्स नजर आएगा. Now the bottom base. One and 5. This point is 1. This is 5.3 and 0.7. Point 2 and 4. 2, 4. 0.6 and 8. This is 0.6 and 8. How much I can see? I can see 7, 8, 1 and 3. हाफ नजर आएगा और इसके अंदर का पोर्शन डॉटेड हो जाएगा. वी कैन नॉट सी दैट. टेंजेंट फ्रॉम कर्व टू कर्व. तो आपका जो सिलेंडर है जब इंक्लाइंड है उसका एक्सिस 30 डिग्रीज तो ये नजर आएगा. एंड नाउ सी द एक्सिस इन दिस टॉप व्यू. This top view axis, this is the top view axis. Top view axis means what? This is beta. The top view is making angle with xy. तो ये आपका हो गया बीटा. ठीक है. अल्फा क्या होता है? The front view is making angle with xy. Okay. Now this is inclined at 45 degrees to VP. This is inclined at 45 degrees to VP. क्या करना होगा? ये आपका जो एक्सिस है इसको 45 डिग्रीज टिल्ट करना होगा. अलाइन एट 45 डिग्रीज. और उसके बाद अगर हम देखें इस एक्सिस के ही पैरेलल है E and 1, 5 and E and A and 1. ये लाइन, दिस इज द लाइन इन अलाइंड विद द एक्सिस. तो अगर मैं ये डिस्टेंस यहां पर 45 डिग्रीज के ऊपर ले लूं, दिस मच, दिस डिस्टेंस हियर, तो आई कैन राइट E point here and 1 point here. Then जो डिस्टेंसेस हैं वो मार्क कर लूं तो मेरे को 1 से 5 मिल जाएगा एंड E से पॉइंट A मिल जाएगा. Now the remaining points, remaining 6 points of this ellipse and remaining 6 points of this ellipse. तो यहां पर मेरे पास इसका एक्सिस पॉइंट ये है और यहां पर इसका एक्सिस पॉइंट ये है. मार्क कर लिया. परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के ऊपर मेरे को 0.3 मिलता है और 7 मिलता है. तो I'll get 7 here and 0.3 here. Point C and point G. Then this is the distance. I can measure this here. Similarly here, here and here. इन लाइन के ऊपर मेरे को 0.6 and 8 मिल जाता है. तो 0.6 and 0.8. ऐसे यहां से जो डिस्टेंस है 0.4 and 0.2, 0.2 and 0.4. If you join here, this is the ellipse which you can see, and this ellipse is this portion of the ellipse is the dotted one. यहां से
ऐसे ही अब यहां पर पॉइंट्स मेरे को क्या करने हैं, बी डी एंड एफ जी लोकेट कर लीजिए। आपका पॉइंट आ गया है बी सी डी ई already here, F and G. And H. I think something has gone wrong. Okay, I tell you what has gone wrong. Initially, this is the point E and this is the point A. तो एक्सिस पॉइंट ये है, यहां पर हम इसको यहां पर G लेंगे. This is point G and this is point C. Now it is okay. Then ये डिस्टेंस यहां से मार्क करके, तो अगर आपका मार्किंग ठीक नहीं आएगा तो आपका जो शेप है यहां रिकंस्ट्रक्ट करते हुए वो डिसबैलेंस हो जाएगा. तो one has to make it very carefully. A, B, C, D, E, F, G, and H. You can join the generators also with the very thin lines. So these are the generators. Now the cylinder is tilted by 45, means the plan axis, this plan axis is making 45 degrees with the VP. अब इस सभी पॉइंट्स को A, B, C, D and 1, 2, 3, 4 ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे. We'll project all the points first of all A, B, C, D one by one. Point A, write down A dash. Point B dash. Point C dash. D dash. E dash. F. G. And H. अब इनको हमें ये नहीं देखना कि यहां पर बिकॉज C एंड G के ऊपर या A एंड E के ऊपर था. नाउ यू हैव टू मेक अ स्मूथ कर्व हियर, joining all the points. You have to make a smooth curve here. थोड़ा सा अगर पॉइंट्स आपके प्रोजेक्ट करते हुए एरर में है, यू कैन अलाइन दोस पॉइंट्स, यू कैन रीचेक, तो आपको ये मिल जाएगा. एंड द एक्सिस ऑल्सो इज द एक्सिस पॉइंट. नाउ 1, 2, 3, 4. 0.5, first of all 0.5 on the base. This is 0.5. This is 0.5. So it will be 5 dash. Then 1 by 1. 1 dash. तो इतने सारे पॉइंट्स हैं आपके, 8 बॉटम के हैं और 8 टॉप के हैं, तो कंफ्यूजन होगा. इसलिए आपका प्रैक्टिस, जैसे ही आप प्रोजेक्ट करें जिस पॉइंट का, उसका नाम लिख दें. ये संग के संग करते जाएं. 0.2 dash, 1 dash, 0.2 dash, then 0.3 dash. Four.
5 is here, 0.6 dash. Seven, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An ellipse, smooth curve here. Then tangent from this on the bottom and tangent from top on the bottom. Now you can join the remaining points. Got it. Axis point. So here you can see the cylinder in this position where this is tilted by 45 degrees, where this is tilted by 45 degrees to VP. So you can see this ellipse here, and in the bottom you can see the curve here. You can see the curve here, and the top view is this. Top view is this. Correct? So this is the top view. You can see this and this portion. Okay. So this is your question number 53. Question number 54. While making the sheet, you can see the video again and again. If there is any problem, then you can see the video again and again. और जो प्रोसेस है उसको समझ लीजिए तो आपको बनाने में आसान रहेगा. Now question number 54. A cone of 25 mm base dia, 50 mm axis is resting on a point of its rim on HP, and axis makes an angle 30 degrees to HP. The top view axis, condition 1, the top view axis makes an angle 45 to VP. Condition 2, the axis makes an angle 45 degrees to VP. Draw the projections. A cone of 25 mm dia and 50 mm axis is resting on a point of its rim on HP. The axis makes an angle 30 degree to HP. Now condition number 1, top view axis makes an angle 45 to VP. Condition 2, the axis makes an angle 45 degree to VP. This is again one of the classical questions of the graphic sciences. जैसे हमने projection of planes में किया था, वहां पर आपका जो top view diameter था सर्कुलर प्लेन का वो बना रहा था, उसके बाद डायामीटर बना रहा था, मींस बीटा एंड फाई बना रहे थे. यहां पर भी वही कंडीशन है कि आपका एक बार टॉप व्यू एक्सिस बनाता है और दूसरी बार आपका टॉप व्यू ओनली एक्सिस बनाता है, ट्रू एक्सिस बनाता है. ओके, so this is the solid cone, right circular cone. It is tilted by this first, and second is it is rotated by this. और इसमें आपके दो कंडीशंस है, एक बार एक्सिस एंगल बनाएगा और एक बार आपका जो है एक बार आपका प्लान एक्सिस एंगल बनाएगा. फर्स्ट कंडीशन प्लान एंड एलिवेशन. प्लान एंड एलिवेशन. व्हाट इज प्लान? अ सर्कल. व्हाट विल बी द प्लान? अ सर्कल. Elevation, a triangle. Condition 2, inclined. Axis is inclined to the VP, HP. Axis is inclined to the HP. Third condition, axis is inclined to the VP. ये axis हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं आधा कोन का, लेकिन इसके जो
आगे वीपी से एंगल है, ये इसका एडवांस पोर्शन है. तो नाउ लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 54. Top view, a circle. Divide the circle in equal 8 parts. One, two, three, four, 5, 6, 7, and 8. Projections. Base circle projections on XY. This is 1 dash, 2 dash, 8 dash, 3 dash, 7 dash, 4 dash, 6 dash, and 5 dash. This is the axis. Generators. Point is O dash. This is O. Now this is making, axis is making 30 degrees to HP. Axis is making 30 degrees to HP. तो base कितना बनाएगा? 60 degrees. This base will make 60 degrees. 60 degrees के ऊपर आपने base को ले लिया और 0.5 आपका यहीं आ गया 5 dash और ये point आ गया आपका 1 dash. Midpoint. Then the axis 90 degrees. Now this is inclined at 30 to XY. Triangle. O dash. जितने भी पॉइंट्स हैं आप यहां पर 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5, 6, 7, and 8 projections for the plan, and from the previous elevation all the points 0.5, 0.1, 0.3 and 7, 2 and 4. This is 0.2. This is for 4, 6 and 8. You can join the points. जब यहां से देख रहे हैं तो हमको आधा नजर आएगा और आधा नहीं नजर आएगा. You can do it practically. एक conical shape करके ऊपर से tilted रखिए तो आपको आधा ही पोर्शन नजर आएगा, आधा नहीं नजर आएगा. Like this. You can see only this portion. When it is tilted like this, तो आपको जो नजर आएगा वो ये नजर आएगा. Now, this is the plan axis. ये क्या है? Now, what is this? ये जो डिस्टेंस आया है हमारा, ये आया प्लान एक्सिस. ये दिस इज द ट्रू एक्सिस. ये हमारा ट्रू लेंथ है. बट यहां पर जब हमने देखा तो ये रिड्यूस हो गया. दिस लेंथ इज रिड्यूस्ड एंड दिस इज योर प्लान एक्सिस. ओके. अब वो कंडीशन 1 कहता है कि जो प्लान एक्सिस है ये 45 डिग्री बनाता है. Condition 1 is this plan axis is making 45 degrees. Okay. जैसा हमने अभी सिलेंडर में किया था, सेम प्रैक्टिस. एक लाइन 45 पे ले लिया, फिर हमने 0.1 to O ये मार्क कर लिया. दिस इज 0.1, दिस इज 0.O. अब इसी के ऊपर हमारा एक्सिस पॉइंट आता है. ये डिस्टेंस यहां से मार्क कर लिया एंड 90 डिग्री.
फिर इसके ऊपर 0.7 एंड 0.3 मार्क किया, and 0.5 is at this distance. Remaining 4 points, 2, 4, 6 and 8, from 3 to this much distance, a vertical line, आपका ये जो distance है, this is 4, यहाँ से यहाँ, this is 4, and this is 2. Here it is 6 and it is 8. So now you have rotated the solid at 45 degrees. When the plan axis is what? This is plan axis. This is plan axis. ये लाइन जो है हमारी प्लान एक्सिस है, ये 45 डिग्री बना रही है, किसके साथ? वीपी के साथ. This is making 45 degrees with the VP. Okay. Project all the points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is 0.4. अब जब हम यहां से इसको देखेंगे, we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, this portion. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Correct? And from point O, tangent to the curve, जहां तक भी आएगा, उसके बाद आपके जो पॉइंट हैं, ये आपके डॉटेड हो जाएंगे. तो आपका जो इलिप्स नजर आएगा, जिस पॉइंट तक नजर आएगा, वहां तक तो आप इसको कर्व बनाएंगे. एंड बिकॉज दिस इज सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, कोई जरूरी नहीं है कि 0.7 पे ही ये आए, 0.7 के आगे भी आ सकता है. इसका जो जनरेटर है, इसको टेंजेंट करते हुए, और उसके बाद वाले जो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये जन आपके डॉटेड हो जाएंगे. एक्सिस. So this is your condition number 1, when the plan axis is making 45 degrees. So this is condition number 1. Now condition number 2. Condition number 2 is that the axis is making angle. यहां पर अगर इसका मतलब समझें कि एक्सिस से क्या है, एक्सिस मीन्स द ट्रू एक्सिस. व्हाट इज ट्रू एक्सिस? व्हाट इज ट्रू एक्सिस? दिस इज ट्रू एक्सिस. जो इसकी एक्चुअल लेंथ है एक्सिस की, वो रिड्यूस हो गई थी यहां पे, जिसको हमने कहा था प्लान एक्सिस. अब वो जो है, उसने फर्स्ट कंडीशन में एंगल बना दिया 45. बट अब सेकंड कंडीशन में वो कहता है द ट्रू एक्सिस मींस द फाई इज गिवन 45 डिग्री. इसमें क्या दिया था? द बीटा इज मेकिंग 45 डिग्री. बीटा इज मेकिंग 45 डिग्री. लेकिन अब यहां पे जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, उसमें आपका फाई इज मेकिंग 45. तो फाई किसके साथ बनता है? ट्रू लेंथ के संग. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थीटा एंड फाई, स्ट्रेट लाइन को अगर हम वापस रिकॉल करें, थीटा और फाई रियल एंगल्स हैं, और वो रियल लेंथ के संग ही बनते हैं. रियल एंगल्स हैं, इसलिए वो रियल लेंथ के साथ बनते हैं. तो यहां पर क्या करना होगा? 45 डिग्रीज पे लाइन लेंगे दोबारा से फॉर द कंडीशन नंबर 2, और अब यहां पर हम जो लेंथ है वो ट्रू 50 लेंगे. दिस विल बी योर
true axis, that is equivalent to 50 mm. तो ये 50 mm की लाइन हम यहां पर लेंगे. 50 mm की लाइन लेने के बाद what we will do, this will be the locus. इसको मैं यहां लिख देता हूं, true axis नीचे, true axis here is equal to 50 mm. अब जब आपका पॉइंट O 0 कह लीजिए, वो यहां पर आ गया कि आपका जो O है वो इस लोकस में कहीं आएगा. द O विल बी लाइंग इन दिस लोकस समवेयर. करेक्ट. तो अब यहां पर हमको जो आपका प्लान एक्सिस आया था, दिस पॉइंट, प्लान एक्सिस क्या है? इसके सेंटर से लेके पॉइंट O तक का डिस्टेंस, ये सेम है. फिगर 2 एंड फिगर 3 के प्लान में उसका जो एक्सिस का लेंथ है, दैट इज योर प्लान एक्सिस, सेम है. अब ये लेंथ लेके आप यहां से मार्क करेंगे. करेक्ट. दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस एंड दिस मच लेंथ वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी आर टेकिंग अ डिस्टेंस हियर. तो आपका जो एक्सिस है, जो 45 डिग्रीज था, उस पे आपका लोकस मिल गया. तो उस लोकस से हमको यह पता लग गया कि अब एग्जैक्टली O कहां आएगा. नाउ पॉइंट O इज हियर. तो अब हम किस चीज को ट्रीट करेंगे? जो हमारी नई लाइन आई है, इसको हम ट्रीट करेंगे. इस लाइन को ट्रीट करेंगे क्या करने के लिए? इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस फिगर को यहां रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो अब आपका पॉइंट O ये आ गया. आपने ये लाइन यहां पर ले लिया. इस लाइन के ऊपर आपने O1 डिस्टेंस लिया, तो आपका पॉइंट 1 यहां आ जाएगा. नाउ योर पॉइंट 1 इज हियर. ठीक है. देन जो डिस्टेंस है 1 to 5 वो मार्क करेंगे. इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो सेम है जो कि हमने इस फिगर के लिए किया. मींस हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इलिप्स को. बस यहीं पर ये जरूरी था कि 45 डिग्रीज का लाइन लेकर उसके ऊपर एक्सिस लेंथ कट किया हमने. उस एक्सिस लेंथ से ये लोकस मिल गया जहां पर हमारा O आएगा. और प्लान एक्सिस जो था वो जब हमने इसको कट किया तो हमको एग्जैक्ट पता लग गया O कहां है. उस पॉइंट से जब हमने उसको आगे प्रोजेक्ट किया तो हमको पूरे सॉलिड का रिकंस्ट्रक्ट करने का एक्सिस पता लग गया. ओके. नाउ perpendicular to this line for 3 and 7, for 3 and 7, and then the distances वो सेम कर रहे हैं हम, कुछ भी उसमें अलग नहीं है. 0.2, 0.4, 6 and 8. Then 0.4. Now you can join points, generators, thin line, and project all the 8 points and O for the final elevation for condition number 2, where the axis is inclined at 45 degrees. 1 dash, 3 dash, 4 dash, 5 is on HP, means XY line, 6 dash, 7.6 and 0.7 is here, 7 dash and 8 dash. That is the last. Then point O. Dash. अब यहां पर आप सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 थिन लाइन से
कर्व बनाइए एंड देन जनरेटर्स मींस टेंजेंट टू द कर्व एंड टेंजेंट टू द कर्व। केवल इतना पोर्शन आपका ये डॉटेड रह जाएगा, बाकी आपका जो कोन है वो ये शेप आ जाएगा। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे एक्सिस जो है 90 डिग्रीज होता जाएगा, ये एक सर्कल में कन्वर्ट होता जाएगा। करेक्ट। So now there is a difference between figure number 1 elevation and figure number 3 अगर हम इसको कहें वैसे कंडीशन नंबर 1 एंड फिगर नंबर 4 का एलिवेशन, अदरवाइज कंडीशन नंबर 2 डिफरेंस है। यहां पे आपका प्लान एक्सिस एंगल बना रहा था, यहां पर एक्सिस एंगल बनाता है 45 एंड देन वी डू द, so this is your question number 54. Now question number 55. Question number 55. 55 and 43. Question number 55 and 43 ये दोनों क्यूब के हैं, तो दोनों को अभी यहां समझ लेंगे और जो ड्रॉ करेंगे वो शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 55 ही हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो द क्यूब is this. Cube means length, width, height all are equal. Length, width, height वो सभी बराबर हैं इसके, तो दैट सॉलिड इज अ क्यूब। जैसे कि टेट्राहेड्रॉन पढ़ा था हमने, पिरामिड्स में टेट्राहेड्रॉन पढ़ा था, अब प्रिज्म में जो है हमारा ये वो एक क्यूब है। ओके, so question number 55, a cube of 30 mm side is resting in HP on a corner, on its corner, base corner, and the solid diagonal is perpendicular to VP. Draw the projections. एक क्यूब है, घन है, जो अपने एक कॉर्नर के ऊपर, बेस कॉर्नर के ऊपर एचपी पे रखा है और इस तरीके से रखा है कि उसका जो सॉलिड डायगोनल है वो वीपी के परपेंडिकुलर है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 55. नाउ क्वेश्चन नंबर 43, a cube of 40 mm side is resting on one of its corner on the base of its base and the solid makes an angle 45 degrees to HP. तो उसमें क्या फर्क है साहब? ये एक आपका क्यूब है, अपने कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है और जो बेस है वो बनाता है 45 डिग्रीज वीपी के साथ, एचपी के साथ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। एक क्यूब है, वो अपने एक बेस कॉर्नर के ऊपर रखा है और आपका जो बेस है वो सॉलिड का वो 45 डिग्री बनाता है एचपी के साथ। ये कंडीशन आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 43 की। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो टॉप व्यू हुआ वो क्या हुआ? इट विल बी अ स्क्वायर, इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर बन जाएगा और इस कॉर्नर के ऊपर हम यहाँ एक और बेस कॉर्नर ले रहे हैं। दिस इज द बेस कॉर्नर, दिस इज द बेस कॉर्नर जिसके ऊपर ये रखा हुआ है यहां पर, और ये पूरा जो सॉलिड है वो 45 डिग्री बनाता है, 45 डिग्री बनाता है एचपी के साथ। ये हो गया सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें 43 के लिए क्या करना होगा? हमको पहले एक स्क्वायर बनाना होगा टॉप व्यू में, और एलिवेशन में क्या नजर आएगा? एक रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल में एक बीच में लाइन। तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 43। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 43, एक स्क्वायर,
यहां पर भी एक रेक्टेंगल जिसकी जो हाइट है वो इसकी साइड के बराबर होगी, बिकॉज लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। और यहां पर आपका आ गया ये फिगर। आई एम नॉट गिविंग एनी नेम, आप इसको कर सकते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी, ऐसे यहां पे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, यू कैन राइट एनी नेम, पी क्यू आर एस कर सकते हैं, राइट, KLMN कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। और उसके बाद इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ये कॉर्नर के ऊपर यहां रखकर, नाउ द बेस इज मेकिंग 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। ये आपका रेक्टेंगल 45 डिग्री के ऊपर टिल्टेड आ गया। जब यहां से देखेंगे आप तो आपको एक रोम्बस नजर आएगा, और जो बेस का है वो नहीं नजर आएगा पूरा, तो आपको सॉलिड ऐसा नजर आने लगेगा। दिस विल बी द कंडीशन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। बहुत बस कॉन्सेप्ट दिया है आपको, बिकॉज वी विल डू द सेम थिंग इन क्वेश्चन नंबर 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। 55 में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि व्हाट इज अ सॉलिड डायगोनल। सॉलिड डायगोनल क्या है साहब? अगर मैं इस फेस को देखूं तो डायगोनल कहूं तो दिस इज डायगोनल, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर ज्वाइनिंग, और दिस इज डायगोनल। अगर इस फेस को देखूं तो ये और ये एक डायगोनल है, और ये एक डायगोनल है। नाउ व्हाट इज द सॉलिड डायगोनल? अगर मैं इस पूरे सॉलिड का ये कॉर्नर टॉप के कॉर्नर, टॉप बेस का कॉर्नर लूं, और यहां पर बॉटम बेस का कॉर्नर मींस दिस, यहां पर ये लिया बॉटम बेस का कॉर्नर ये, और टॉप बेस का कॉर्नर ये, दिस इज द सॉलिड डायगोनल। इन दो को अगर मैं मिलाऊं तो दिस इज द सॉलिड डायगोनल। ओके, अब वो ये कहता है कि ये अपने एक बेस कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है, एंड द सॉलिड डायगोनल इज परपेंडिकुलर टू द वीपी, परपेंडिकुलर टू द वीपी। अब ये सॉलिड डायगोनल क्या हो गया? ये पॉइंट और एग्जैक्टली बिल्कुल पीछे का पॉइंट, मींस ये दिस इज द लाइन, यहां पर मेरी फिंगर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सॉलिड डायगोनल है। ये टिल्ट करते करते मैंने इसको परपेंडिकुलर कर दिया। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इस कंडीशन में आपको प्लान एंड एलिवेशन इसका बनाना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट कंडीशन हो गई सब प्लान एंड एलिवेशन के लिए एक कॉर्नर रखते हुए, दिस विल बी द प्लान, एक स्क्वायर, कॉर्नर एंड एलिवेशन और रेक्टेंगल। सेकेंड कंडीशन हम क्या करेंगे? वी विल मेक द सॉलिड डायगोनल पैरेलल टू एचपी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या करेंगे? उसको रखा हुआ है। सेकेंड स्टेप में सॉलिड डायगोनल पैरेलल कर लिया। थर्ड स्टेप में इसको टिल्ट करके 90 डिग्रीज कर, ठीक है। 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सॉलिड को प्लेस करके उसका सॉलिड डायगोनल आइडेंटिफाई कर लेंगे, सेकंड में उस सॉलिड डायगोनल को पैरेलल टू एचपी कर देंगे, एंड थर्ड में परपेंडिकुलर टू वीपी, जो कि रिक्वायरमेंट है हमारे क्वेश्चन की। ओके, ऑलराइट। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो द बेस फॉर द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस जब हम सेकंड सेमेस्टर में करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो हमारा ये बेस होगा इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। तो क्या बनाना है सब? सबसे पहले हमको एक स्क्वायर बनाना है। वी हैव टू मेक अ स्क्वायर ऑफ गिवन साइड, एंड उसका एक कॉर्नर हमारे पास रहेगा।
कॉर्नर को जो आपका स्क्वायर है वो ऐसा बनेगा. यू विल मेक द स्क्वायर लाइक दिस. You can say this is A, B, C, and D. 1, 2, 3, 4. Elevation जितना यहां पर साइज दिया हुआ है वही आप हाइट यहां ले लेंगे एंड आपको ये रेक्टेंगल मिल जाएगा. A dash, B dash, C dash, D dash, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. Now suppose this solid is resting on its corner C, means C dash for the elevation. HP पे ऊपर C के ऊपर रखा हुआ है. So what is the next solid diagonal? A dash 3 dash is the solid diagonal. तो A dash 3 dash मतलब मैंने ऑपोजिट टॉप बेस का कॉर्नर लिया, बॉटम बेस का ऑपोजिट कॉर्नर लिया, उसको मिला दिया. तो इस लाइन को जो कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सॉलिड डायगोनल. क्लियर? अब सेकेंड स्टेप में ये जो लाइन है मेरे को पैरेलल करनी है HP के. दिस A3 विल गो पैरेलल टू HP, मींस पैरेलल टू XY लाइन. तो अपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने पॉइंट C से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, so that I can reconstruct this figure here easily. एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. अब इस लाइन को मैंने यहां पे वर्टिकल ले लिया. ये लाइन यहां पर वर्टिकल ले ली. C एंड जो डिस्टेंस आया है वो यहां से लेकर ये दिस. अब इसके ऊपर यहां पर लाइन हमने पैरेलल ले ली. अब इस पैरेलल लाइन के ऊपर 0.3 जितना आया है वो मार्क कर दिया एंड इस पॉइंट से पॉइंट A कितना आया है वो मार्क कर दिया, A डैश. नाउ यू कैन जॉइन C डैश एंड A डैश. इसके पैरेलल लाइन A डैश से ड्रॉ कर दी और यहां से A डैश C डैश के पैरेलल लाइन. So this point is 1 dash. Okay? अब आपके पास पॉइंट आ गया BD. So B dash, D dash, and this is 2 dash and 4 dash. So basically, you have reconstructed the elevation of figure 1 here while making the solid diagonal parallel to XY line. अब इस कंडीशन में अगर हम इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप से, तो आई कैन सी 1 2 3 4. ये स्क्वायर में को पूरा नजर आएगा. प्रोजेक्शंस प्रीवियस टॉप व्यू से ले लीजिए. दिस इज 0.1, दिस इज 0.3, 0.2 and 0.4. I can join 1 to 2, 2 to 3 to 4, 4 to 1. So your square is converted in a rhombus. एक rhombus के शेप में ये निकल के आया आपके फिगर नंबर 2 में, जो कि ये इंक्लाइंड हो गया. ओके, नाउ द ABCD. So point B and point D here, point A and point C here. यहां पर जो नजर आएगा हमको वो A to D, A to B, A to B, B, एंड जो नहीं नजर आएगा वो आ जाएगा आपका पॉइंट C. क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट C यहां पर आप देखिए बिल्कुल बॉटम में है. तो पॉइंट C से आपका BC एंड DC एंड थर्ड लाइन इज C3. पॉइंट C से आपके 3 लाइन निकलती हैं, CB, CD एंड C3.
C3, CB एंड CD नहीं नजर आए। आपने वो डॉटेड कर दी और बाकी लाइंस जो नजर आ रही हैं आपने फॉर्म लाइन बना दी। So your solid will be appearing like this in the top view. ठीक है। Now the last, what is it? Point A and 3 means the solid diagonal. अगर आप यहां देखें solid diagonal क्या है? A dash 3 dash. प्लान में solid diagonal क्या है? A3. हमको बनाना क्या है? हमको बनाना है A3 perpendicular to VP means this is phi is 90 degrees of A3. A और 3 का 90 degrees. तो मैंने एक यहां पर perpendicular line, this is the final step, perpendicular line ले लिया और जो आपका डिस्टेंस आया A3, दिस इज A3, यहां लेके मार्क कर लिया। तो दिस पॉइंट विल बी पॉइंट A 1 2 3 4, सो पॉइंट 3 हम नीचे ले लेते हैं एंड पॉइंट A यहां परपेंडिकुलर लाइन। अब इसके ऊपर जो डिस्टेंसेस हैं पॉइंट C, A से पॉइंट C एंड 3 से सॉरी पॉइंट A1 और 3 to C, point C. This is point 1, this is point 3. Okay? सिंपल है, ये यहां पे ले लिया और ये यहां पर ले लिया। देन जो आपका पॉइंट 1 आया है, जो आपका A एंड C के ऊपर B एंड D ड्रॉ करना है, जो डिस्टेंस आया वो यहां से लेकर परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे ही यहां C से लेकर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर लाइन। ये पॉइंट आपका पॉइंट 4, उतना ही इधर लेके पॉइंट 2, तो यू हैव 1 to 2 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। ऐसे ही आपका पॉइंट A और C ये है के बीच में आपका ये पॉइंट आया, जिससे B एंड D निकल आए, तो आपने A से लेकर वो मार्क कर लिया और पॉइंट यहां पर आ गया आपका पॉइंट B, और इतना डिस्टेंस जब यहां चले गए पॉइंट B, A to B, देन A to D, C3 डॉटेड था, CD डॉटेड था और CB डॉटेड था। तो यू हैव rotated the solid at 90 degrees. You have rotated this solid at 90 degrees. A3 is there. जो रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का, the solid diagonal is perpendicular to VP, तो उस कंडीशन में आपका जो प्लान है वो ये नजर आएगा। जो आपकी डॉटेड लाइन है वो पॉइंट C के लिंक्स हैं, CD, रिपीट कर रहा हूं मैं, CB एंड C3। अब इन सभी पॉइंट्स को आप एलिवेशन के लिए प्रोजेक्ट कर लेंगे। Now you can project the points from the previous figure for the final elevation. 1, point 1, 3, C, A, ये सब एक ही उसमें है। पॉइंट 1 डैश, पॉइंट A डैश, पॉइंट C डैश एंड पॉइंट
3 dash. Then point B and D. This is point B. And here, this point will give you point B in the elevation. Then point 2 and 4 for point 2 projection, point 4 is here, projection is here. Now you can see in the elevation that A dash 3 dash is a point. ये पूरा का पूरा जो लाइन थी हमारी A dash 3 dash यहां नजर आ रही थी, वो यहां पर एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गई। करेक्ट? अगर आप इसको देखें यहां पर जो आपकी लाइन A3 थी वो यहां पर एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो गई। मींस नाउ दिस इज परपेंडिकुलर। जो यहां पर आपकी लाइन थी ऐसे नजर आ रही थी, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कर दूंगा तो एक पॉइंट में कन्वर्ट होगी। करेक्ट? तो अब आपको यहां से जब आप देखेंगे क्या नजर आएगा, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, क्या नहीं नजर आएगा आपको? ए के लिंकेजेस नहीं नजर आएंगे, AD, AB and A1, A1, AB, AD नहीं नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे आपको? और 2B, BC, CD and D4. 1A, so 1A is here. इस पॉइंट को यहां पर ठीक करिए। 1A is not here, 1A is here, तो ये वाली लाइन एंड 1 यहां पर 3C नजर आएगा। तो आपका फाइनल एलिवेशन अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेगुलर हेक्सागन में कन्वर्ट हो गया। जो एक क्यूब था वो आपको एलिवेशन एक रेगुलर हेक्सागन नजर आ to be स्क्वायर था। इट वॉज अ स्क्वायर, इट वॉज अ स्क्वायर। अगर ट्रू देखा जाए तो ये एक स्क्वायर था यहां पर इनिशियली, बट अब ये यहां पर एक रोम्बस में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज योर फिगर नंबर क्वेश्चन नंबर 55 and this is the last question of your syllabus of your question bank. So now you have to complete your sheet and submit the sheet by given date on the class Google Classroom only. Don't mail any PDF on any email ID. Please submit only on the classroom and on the given assignment. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अलग अलग असाइनमेंट्स हैं आपके। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का अलग था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का भी था सेकंड, एंड देन द लास्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो आपको ये जो करना है वो अपने लास्ट आइसोमेट्रिक आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का जो असाइनमेंट है उसमें सबमिट करना है, एंड डेट इज आई थिंक 14th इज द डेट। So you have to submit it by that day, right? If there is any problem, you can ask in the interactive class that is tomorrow. तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं, right? Thank you very much.